Hello dear students, I hope that all of you are studying well while sitting in your homes and you are not wandering outside. Today we are going to read chapter 16th of 7th class science textbook. The chapter is on water. It is on page number 240 of the textbook. Before reading the chapter, let us pose certain questions to ourselves. پہلے میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھوں گا یا آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے. ہم نے صبح کس سے منہ دھویا؟ Obviously we have used water to bath ourselves. ہم نے پانی سے منہ دھویا. اسی طرح ہم صبح کی بات ہی کریں گے. صبح ہم نے چائے کس میں بنائی؟ Obviously پانی میں. اسی طرح ہم کپڑے کس سے دھوتے ہیں؟ پانی سے ہی دھوتے ہیں. اسی طرح جو ہم نے کھانا پکایا وہ کس میں پکایا؟ اوبویسلی وہ پانی میں سے ہی پکایا ہوگا. تو آج کا چیپٹر جو ہے وہ پانی پر ہے، یعنی واٹر پر ہے. تو واٹر ایک ایسا نیچرل ریسورس ہے جو ہر کسی جاندار چیز کو ضرورت لگتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ چرندے ہو، پرندے ہو، چاہے وہ پلانٹس ہو، چاہے اینیملز ہو. تو اس میں ہمیں واٹر کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو زندہ رہنے کے علاوہ باقی بھی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے صبح ہی کہا، پہلے ہی کہا، یہ ہمیں کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے، نہانے میں استعمال ہوتا ہے، یہاں کھیت کھلیانوں میں استعمال ہوتا ہے، بجلی میں استعمال ہوتا ہے. تو پانی کے کنسٹرکشن کاموں میں استعمال ہوتا ہے، انڈسٹریز میں استعمال ہوتا ہے. تو پانی جو ہے ہمارے پاس انسان جو ہے اس سے استعمال کرتا ہے اپنے لیے بھی، زندہ رہنے کے لیے بھی، اور جو باقی اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ پانی. اب ہم نے ٹرم یوز کی نیچرل ریسورس اس چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی یوٹیلیٹی ہو. جیسے ہمارے پاس ہے فارسٹ سے ہم فارسٹ پروڈیوس لکڑیاں، کوئلہ، دوائیں حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہمارا نیچرل ریسورس ہے. اسی طرح جو زمین کے اندر منرلز ہے، ان منرلز کو کھوج کر کے، چاہے وہ میٹلز ہو، نان میٹلز ہو، تو ان کو ہم کھوج کر کے اپنی جو ترقی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ریسورس آر دا نیچرل اینڈومنٹس with which we sustain ourselves and resources have certain utility. اسی طرح وہ پانی بھی ایک نیچرل ریسورسز ہے، اس کی بھی ایک یوٹیلیٹی ہے. یوٹیلیٹی کے علاوہ یہ انسان یا تمام جاندار چیزیں ہیں ان کو زندہ رکھتا ہے. اگر پانی نہیں ہوگا ایک ہفتے تک تو انسان زندہ نہیں رہے گا. ہاں اگر کھانا نہیں ہوگا تو چلو اس سے تو ٹائم نکلے گا، وہ مرے گا نہیں. لیکن اگر پانی نہیں ہوگا تو پانی کے بغیر زندگی کہیں نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سائنسدان یہاں ادھر جو چاند ہے ہمارا ہے اس پر چڑھے، جو ادھر مارس ہے اس پر چڑھے، لیکن وہاں پانی نہیں ہے، وہاں ہوا نہیں ہے. تو پانی کے بغیر آپ زندگی کا تصور، لائف کا تصور نہیں کر سکتے. پانی سے ہی زندگی ہے، پانی سے ہی جن جیون ہے. تو ہم آتے ہیں چیپٹر پر. اس واٹر پر میں نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے یہاں پر. جو چیپٹر 16 ہے واٹر، پارٹ فرسٹ 7th کلاس ٹیکسٹ بک کا، اٹ از آن پیج نمبر 240. آپ پیج نمبر 240 کو دیکھیں، وہاں پر ہوگا. واٹر از اے نیچرل ریسورس without which we cannot think of life. It sustains life and is used for other purposes like industrial, agricultural, household and recreational activities. جو واٹر ہے یہ ایک نیچرل ریسورسز ہے. نیچرل ریسورس ہم نے کہا جو قدرت نے ہمیں نوازا ہے، یعنی اس کے پانی ہے، ہوا ہے، فارسٹز ہے، منرلز ہے. یہ ہمارے ریسورس ہے جس سے ہماری زندگی چلتی ہے. اگر ریسورسز نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی اتنی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوگی، اور نہ ہی اگر پانی کی ہم بات کریں تو ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے ہیں. تو ہم پانی کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے ہیں. جہاں پانی ہے تو زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے. It sustains life.
चाहे वो छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, बड़े से बड़ा इंसान हो, या वेल मछली हो, इसी तरह जो हाथी है वो हो, तो पानी सबके लिए जरूरी है। प्लांट्स हो, बड़े से बड़ा बेनियन ट्री हो या एक्लिप्टस ट्री है, तो उसके लिए भी पानी जरूरत है। इसी तरह रेगिस्तान में जो कोई भी हो, जहाँ डेजर्ट्स है, वहां पर वाटर लॉस को बचाने के लिए उन्होंने अडॉप्टेशन की है अपने आप में, चाहे वो एनिमल्स हो, डेजर्ट एनिमल्स या डेजर्ट प्लांट्स, तो पानी को लॉस होने से बचाने के लिए उन्हें अडॉप्टेशन की है। तो वाटर जो है ये सस्टेन करता है लाइफ को, और जो बाकी अखराजात होते हैं इंसान के, जैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, आप देखेंगे चमड़े की इंडस्ट्री है, लेदर फैक्ट्री होती है, वहां पानी का इस्तेमाल होता है। जो बेकरी इंडस्ट्री होती है वहां पानी का इस्तेमाल होता है। कपड़े की इंडस्ट्री होती है वहां पानी का इस्तेमाल होता है। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में पानी इस्तेमाल होता है। इसी तरह एग्रीकल्चरल में जो हमारे खेत खलियान हैं, जब हम पनीर लगाते हैं तो वहां पानी इस्तेमाल होता है। तो पानी के बगैर आप फसल के जो यील्ड निकलता है फसल का, वो अच्छा नहीं निकलेगा। इसी तरह हाउस होल्ड, अपने घर में हम पानी इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स, बाथिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स में इस्तेमाल करते हैं, एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जब हम पानी में जाते हैं तो आपने पहलगाम में देखा होगा, वहां पर हम बोट चलाते हैं, वहां पर जो पानी में से खेलते भी है। पॉन्ड्स में अगर पानी हो तो वहां बच्चे भी खेलते हैं। इसी तरह झील डाल में अगर देखेंगे तो वहां बोट्स है, वो बाकी चीज एक्टिविटीज होती है, स्विमिंग होती है। तो पानी जब पानी है तो तभी यही एक्टिविटीज होंगी। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्स किसे हम कहेंगे? मान लीजिए कोई चीज हम फॉरेस्ट से इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं इसका सोर्स फॉरेस्ट है। कोई मेडिसिनल प्लांट है, यहाँ पर कोई हर्ब है हमारे पास, तो हम वो फॉरेस्ट से इस्तेमाल लाते हैं, तो हम कहेंगे इसका सोर्स फॉरेस्ट है। सोर्स का मतलब ये हुआ कि कोई चीज हम कहाँ से हासिल करते हैं। अगर हमारे पास पत्थर है तो पत्थर यहाँ पर किसी जगह जो माइनिंग इंडस्ट्री हो तो वहां पर पत्थर है, तो हम कहेंगे इसका सोर्स वहां पर है। इसी तरह जो पानी है ये कहाँ कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, अब हम यही पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर रेफर टू द प्लेसेस फ्रॉम विच वी गेट वाटर। जहां जहां से हम पानी इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं तो उसी को हम कहेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर के दो किस्म है, यानी कहाँ कहाँ से हम पानी इस्तेमाल हासिल कर सकते हैं, उसके दो किस्म है। एक किस्म है सरफेस वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर हुआ जहां जहां भी पानी जमीन के ऊपर है, चाहे वो झील हो, नदी हो, तालाब हो, ग्लेशियर हो, रेन हो, बारिश का पानी हो, या ये जो हेल स्टार्म होता है, अगर हम उसको ओले जो होते हैं वो हो, वो भी एक पानी की शक्ल है, तो उसे हम सरफेस वाटर कहेंगे, यानी वो वाटर जो जमीन के ऊपर हो। इसी तरह जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर हुआ वो वाटर जो जमीन के नीचे है। जैसे कि जो वाटर बाहर निकलता है जमीन के नीचे ही होता है, वो बाहर निकलता है इन द शेप ऑफ स्प्रिंग्स, इन द शेप ऑफ एक्वाफायर्स, तो उसको हम कहेंगे ग्राउंड वाटर। जब ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर होता है, ये खुद अपनी जगह नहीं बनाता, फिर हम क्या करते हैं, जो ट्यूबवेल होता है, बोरवेल होता है, इसी तरह हैंड पंप लगाते हैं, तो इस ग्राउंड वाटर को हम ऊपर खींचते हैं अपनी जरूरियात के लिए। तो सोर्स ऑफ वाटर आप ध्यान रखोगे, सोर्स ऑफ वाटर है दो किस्म के, एक है सरफेस वाटर, दूसरा है ग्राउंड वाटर। अब सरफेस वाटर की बात करेंगे। Surface water refers to any above ground source of water and can exist in the form of rain, ponds, lakes, rivers, streams, seas and oceans, glaciers and snow। जो सरफेस वाटर हुआ हमने पहले ही कहा है, वो पानी है जो जमीन से ऊपर है, जो जमीन की सतह पर है, उसी को कहते हैं हम सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में आपके जमीन की सतह पर क्या होता है, एक होता है रेन, पॉन्ड्स तालाब होते हैं, झील होते हैं, नदियां होती है, दरिया होते हैं, समंदर होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं और बर्फ भी होती है। तो इनको कहेंगे हम सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस सोर्सेज ऑफ वाटर। और दूसरा होता है हमारा ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर होता है। ग्राउंड वाटर क्या कहेंगे? ग्राउंड वाटर रेफर्स टू एनी सोर्स ऑफ वाटर दैट लाइज बीनीथ द सॉइल लेयर
and can exist in the form of aquifers, springs, wells. हमने पहले भी कहा है जो ग्राउंड वाटर ये जमीन से नीचे होता है, जब बारिश का पानी गिरता है ऊपर से तो जमीन में पोर्स होते हैं, जो सैंड होती है, स्टोन्स होते हैं, तो या किसी भी जगह जमीन के अंदर पोर्स होते हैं, तो बारिश का पानी नीचे जाता है. इट परकुलेट्स डाउन द अर्थ's क्रस्ट. तो नीचे जाके एक सतह पर रहता है जिसके नीचे एक बेड रॉक होता है, तो ऊपर पानी जमा होता रहता है. तो जो ही पानी जमा होता रहता है, इस पानी को हम ग्राउंड वाटर कहेंगे. इससे हम कैसे बाहर निकालेंगे? इससे हम बाहर निकालते हैं ट्यूबवेल से, बोरवेल से, हैंड पंप से. इससे हम बाहर निकालते हैं, या खुद ये निकलता है किसे? इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, जो चश्मे होते हैं हमारे पास. आगे जाके हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर. अब जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी, जो हमारी यूटी है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें हम कहेंगे इसमें कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वाटर है, किन किन मुकामात से हम ये पानी हासिल कर सकते हैं. तो हम पढ़ेंगे, इसमें हमने पहले ही कहा जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वो होते हैं लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ओशंस, ग्लेशियर्स एंड स्नो. तो यही हम पढ़ेंगे जम्मू रीजन में कौन कौन से लेक्स है और कश्मीर रीजन में कौन कौन से लेक्स है. जम्मू रीजन में लेक्स, जो बहुत सारे भी लेक्स हैं, लेकिन जो फेमस लेक्स है उनकी हम बात करेंगे. एक है सनासर लेक. सनासर लेक है पाटनी टॉप के ऊपर. आपने देखा होगा, जो भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गया होगा, तो पहला जो रास्ता था जम्मू श्रीनगर, जो चिरानी नाशरी टनल होता है, उसका नाम है रामा प्रसाद मुखर्जी टनल. तो अगर हम उसको पहला जो रास्ता देखेंगे, पहले रास्ते पर पाटनी टॉप पड़ता था, एक मुकाम बहुत ही सेहत अफजा मुकाम है, अच्छा मुकाम है. तो उसी के ऊपर एक है सनासर लेक और दूसरा है मानसर एंड सुरैंसर लेक. जो मानसर लेक और सुरैंसर लेक है, ये इधर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है, ये मानसर और सुरैंसर लेक. तो मानसर में आपने देखा हो उसे मछलियां भी बहुत ज्यादा होती है. अब हम कश्मीर की बात करेंगे. लेक्स ऑफ कश्मीर रीजन. कश्मीर में बहुत सारे लेक्स है एज कम्पेयर टू जम्मू. तो एक है हमारा डल लेक. आपने देखा होगा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में डल लेक. वुलर लेक, वुलर है एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश लेक. तो ये और एक लेक है हमारे पास मानसबल लेक. मानसबल लेक है डीपेस्ट लेक. तो जो वुलर है ये फ्रेश वाटर लेक है, एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. तो ये कश्मीर के लेक्स हैं. बहुत सारे लेक्स इसके अलावा है, जैसे कि हमारा आंचार है, निगीन है. तो बहुत सारे लेक्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो अभी किताब पर दिया हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो उसी की बात हमने की है. अब है लेक्स ऑफ लद्दाख रीजन. लद्दाख में कौन कौन से लेक्स है? एक है पोंगांग लेक और सोमोरी लेक. तो ये पोंगांग जो है साल्ट वाटर लेक है, ये साल्ट वाटर लेक है पोंगांग लेक. तो ये लद्दाख रीजन में ये दो लेक्स होते हैं. आपको याद रखना है किस रीजन में कौन सा लेक है. अब हम चूंकि जो सरफेस वाटर की बात करते हैं, तो रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सरफेस वाटर में रिवर भी होता है, स्ट्रीम्स भी होते हैं. तो जम्मू कश्मीर के रिवर्स की बात करेंगे, दरिया की बात करेंगे. जम्मू रीजन में कौन दरिया है? एक है तवी, उज, रावी, चिनाब. तो तवी जो है, जो जम्मू शहर है, वो तवी के जो बैंक्स होते हैं उन्हीं के दाएं बाएं आबाद है. इसी तरह जो रावी जो है, रावी जो है ट्रांस बाउंड्री रिवर पंजाब और जो जम्मू कश्मीर है हमारा, उसके जो बाउंड्री होती है वो रावी रिवर डिटरमाइन करती है. तो कश्मीर रीजन में कौन कौन से है? ब्रिंगी है. आपने ब्रिंगी जो हम देखते हैं यहाँ हिलर से गुजरती है, तो ये इस दरिया को कहते हैं हम ब्रिंगी. जहलिम, जिसका सोर्स वेरीनाग स्प्रिंग है. तो जहलिम श्रीनगर, जो श्रीनगर सिटी है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द टू बैंक्स ऑफ जहलिम रिवर. इसी तरह लिदर, जो पहलगाम वैली है, वहां से दरिया निकलता है लिदर. इसी तरह सिंध उधर गांधरबल से होता है. और किशन गंगा का दूसरा नाम भी है नीलम. तो ये कश्मीर रीजन के दरिया है, कश्मीर रीजन के दरिया है. इसी तरह लद्दाख रीजन में कौन कौन से दरिया है? इंडस इसे दूसरा है ज़नस्कार, ये भी ज़नस्कार रिवर है. इंडस रिवर है. शयोक रिवर का दूसरा नाम है रिवर ऑफ सारू. और सूरू रिवर है. तो ये रिवर्स जो है इधर लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं, ये वाले उधर कश्मीर रीजन में, और ये वाले
جموں ریجن میں پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر انڈین اسٹیٹس. جو ہمارے اسٹیٹ ہے اس میں پانی کی اتنی قلت نہیں ہے، اس میں پانی وافر مقدار میں موجود ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا.